अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अन्निसा। आज हमने दो आयत हमने कर ली थी, हमारी नई सूरह ये शुरू हुई है, तो दो आयत हमने कर ली थी। आज हम आयत नंबर 3 से यानी 3 से करेंगे, और मैं आपको पहले इसको पढ़ के बताती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसके रूल भी बता दूंगी, और इसे सुनिएगा और इसके साथ तैयारी कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فان- فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا। यहाँ पर हमारी आयत नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। ये दो आयत हैं, आप इनको देखिए, दोबारा देखिए कि कुछ चीजें मैं रूल्स आपको बताती हूँ। व इन खिफ्तुम, आयत नंबर 3 पे आइए। व इन खिफ्तुम, एक एक लफ्ज पढ़ ले मेरे साथ। व इन खिफ्तुम अल्लाह तो कुसितु फिल यतामा फंकिहू फंकिहू मा त्वाबा लकुम लकुम, इधर गुन्ना इदगाम है ना, लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अब देखिए, वह इन खिफ्तुम में आपने नून के बाद हरफ हल्की है खा, तो पूरे इजहार के साथ आपने पढ़ा हुआ इन खिफ्तुम, ठीक है। फिर तुम भी आपने पूरा मीम मीम साकिन भी, जिस तरह आपने नून साकिन इजहार के साथ पढ़ा, इजहार हल्की हुआ। फिर आगे मीम साकिन भी आपने पूरा इजहार हल्की किया। क्यों? आगे हमजा है, जब अलिफ है ना, अलिफ पर जे जबर या पेश या जज्म हो तो वो अलिफ नहीं होता, वो हमजा हो जाता है, और हमजा हरफ हल्की है। तो इस वजह से खिफ तुम पूरा हम इसको पढ़ेंगे इस तरीके से इजहार के साथ। फिर अल्लाह तशदीद है, तो कुसे तू, काफ पे कलकला होगा, क्योंकि काफ कुतुबिन जद्दिन का हर्फ है, तो काफ को हिला के पढ़ना है, मोटा भी पढ़ना है। तो कुसे तो, अब जो तू है ना, इसको दो हरकत खींचेंगे, तो भी मोटा, खुस्सा दिक्तिन किस, ये 7 हरूफ जो हैं, ये ट्रम है, इसके अंदर जो 7 हर्फ छुपे हुए हैं, ये मोटे हर्फ हैं, हर हाल में ये मोटे ही पढ़े जाएंगे। उसमें कॉफ भी शामिल है, तो भी शामिल है, तो इन दोनों को मोटा करना है, लेकिन कॉफ पे आपने कलकला करना है, क्योंकि ये कुतुबिन जद्दिन के जो 5 हरूफ हैं, कॉफ तो बा जीम दाल, ये जहां कहीं भी जज्म के साथ होंगे वहां पे कलकला होगा। फिर देखिए, फिल यतामा, फिल य ता, ता को खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर पढ़ जाएगा। इसी तरह माँ,
اس کو بھی الف کے برابر پڑھا جائے گا کھڑی زبر کی وجہ سے. پھر دیکھیے آگے اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہو رہا ہے. کیوں؟ فاکہو. اب نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد جب 15 حروف ہے نا ایسے کہ جو آتے ہیں تو اخفا ہوتا ہے، تو یہ کاف بھی اسی میں شامل ہے. اس طرح آواز تھوڑی ناک میں چلی جائے گی، تھوڑی باہر رہ جائے گی، یہ ہے اخفا. اور یہاں پہ غنہ بھی ہوگا لیکن چھوٹا غنہ ہوگا سیکنڈ لیول کا، جس کو کہتے ہیں غنہ کاملہ. فاکہو، یہ جو ہو ہے نا اس کو 2 حرکات کھینچیں گے اور یہ وہ والا ہا ہے جو گلے سے پڑھا جاتا ہے. ما توبہ، ما کو باریک پڑھنا ہے لیکن تو کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ تو موٹے حروف میں سے. توبہ. اب با کو نہیں کھینچنا کیونکہ تو کے ساتھ تو الف ہے لیکن با کے ساتھ الف نہیں ہے. تو تو با. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم تو با برابر کر دیں گے تو با کے ساتھ الف لگ جائے گا اور وہ ہو جائے گا اضافی حرف، اور اضافی حرف لہنے جلی ہے جو کہ حرام درجے کی غلطی ہے. اس لیے دیکھ کے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. جن کے ساتھ الف ہے اس کو الف کہتے ہیں. دیکھیں تو کے ساتھ جو الف لگا ہے نا یہ ہے الف، اور یہ الف مدہ ہے اور یہ خالی ہے. یہ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی کیونکہ اس کی اپنی حرکت نہیں ہوتی، یہ دوسرے کی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور یہ کنڈیشنل لیٹر بھی ہے کیونکہ یہ موٹے حرف کے ساتھ، جیسے تو کے ساتھ آیا تو یہ موٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، جب یہ باریک کے ساتھ ہوتا ہے تو باریک ہوتا ہے. تو اس طرح سے پڑھنا ہے 2 حرکات کھینچ کے تو، اور پھر با کو صرف ایک حرکت تو با زبر با. پھر دیکھیے لکم. لکم کے اندر جو ہے میم ساکن کے بعد آگے دیکھیے میم آ رہا ہے مشدد. مشدد میم جو ہے یعنی تشدید والا میم. جب یہ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جاتا ہے تو یہاں پر جو قاعدہ ہے، یہ اس کا قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی، کیونکہ یہ میم کا قاعدہ ہے. شفوی کیوں؟ ہونٹوں کو کہتے ہیں شفتان عربی میں، اس لیے میم ہونٹوں سے زیادہ ہوتا ہے. بول کے دیکھیے میم، آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں ٹچ ہو جائیں گے. تو یہ میم جو ہے قاعدہ شفوی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. تو یہاں پر قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ ادغام شفوی. ادغام کہتے ہیں یعنی یہ آپس میں، یہ دیکھیں لکم اس طرح اگلی والی میم کے ساتھ جا کے جڑ گیا کیونکہ یہ جو لکم کا میم ہے یہ جزم کے ساتھ ہے اور اگلا جو میم ہے یہ تشدید کے ساتھ ہے. تو اگلے میم کے اندر تشدید بتا رہی ہے کہ یہاں بھی 2 میم ہے، ایک اندر چھپا ہوا ہے. اس میم کو کاف کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے تو یہاں اچھا ایک چیز اور دیکھیے، ادغام بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ تشدید ہے. جب بھی میم پر یا نون پر تشدید ہوتی ہے تو آواز کو ناک میں دیر تک چھپایا جاتا ہے جس کا نام ہے غنہ، اور جب زیادہ دیر تک چھپایا جاتا ہے تو بڑا غنہ کیا جاتا ہے. بڑے غنے کا بھی تجوید کی لینگویج میں نام ہے اکمل غنہ، تو وہ یہاں پر بڑا غنہ ہوگا یعنی دیر تک آواز ناک میں چھپے گی. ٹھیک ہے، لکم اس طرح سے. پھر دیکھیے منن. اب جو آگے دیکھیے ہم نے جتنا ادھر غنہ کیا ہے اتنا ادھر نون پر بھی کریں گے. منن. کیوں؟ یہ بھی نون تشدید کے ساتھ ہے. یہ جو کی آواز ہے یہ غنہ ہے، ناک میں جو آواز چھپی یہ اکمل غنہ ہے اور یہ یہاں پہ ضروری ہے. لکم من النساء. اب سا کو کیوں کھینچا؟ اس کے اوپر مد ہے. ٹھیک ہے، مد کے بعد ہم نے حمزہ زیر ای ایک حرکت پڑھا. مسنا. مس جماؤ کے ساتھ نون نون کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر. اسی طرح سلاسا. سا جو ہے ایک حرکت، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے وہ الف کے برابر، اور پھر سا زبر سا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے وروبا. میں نے اس کو کر کے عین پہ میں رک گئی ہوں. وروبا ایسے کر دیا میں نے، عین کو میں نے اپنے گلے میں دکھایا کہ ہاں میں عین پہ رکی ہوں، لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو وروبا بس ایسے. وروبا ان خفتم آگے چلے جائیں گے. اگر رکیں گے تو آپ نے عین کی حرکت کو پوز کرنا ہے. ربا کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں. وربا فإن خفتم. عین کو ایک حرکت پڑھنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. با جو ہے وہ کھینچے گا ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے، بہت دھیان سے اس کی تیاری کرنی ہے. فإن خفتم آگے پھر دوبارہ وہی لفظ آیا. فإن نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، خا حرف ہلکی ہے، آپ نے پورا اظہار کرنا ہے. جدھر بھی ہلکی حروف آتے ہیں 6 حروف ہیں ہلکی، وہاں پر اظہار ہلکی ہوتا ہے. وہ ہو گیا خفتم. پھر یہاں بھی اظہار ہو گیا، تم میم ساکن کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے اللہ. پھر دیکھیے تعدیلو، عین کو جماؤ کے ساتھ، عین کو گلے سے پڑھ، اس کو تعدیلو کریں گے تو عین تو اسکپ ہو جائے گا نا. عین کو پڑھنا ضرور ہے ورنہ نقصانی حرف ہو جائے گا، اور نقصانی حرف لہنے جلی ہے جو حرام درجے کی غلطی ہے. تعدیلو.
तादिलू, लू जो है ये 2 हरकत खींचेगा क्योंकि इसके साथ वाव मद्दा है। वाव मद्दा के हुरूफ जो वाव मद्दा, अलिफ मद्दा और या मद्दा, ये तीनों हुरूफ जो हैं मद्दा के हैं और ये 2 हरकत तक खींचकर पढ़े जाते हैं। अब देखिए वाहिदतन, फ एक हरकत, वा 2 हरकत, वाव के साथ अलिफ मद्दा है ना, फिर हा जेर ही दाल जबरदा सब एक एक, फिर फवाहिदतन पूरा ता 2 जबर, तन की तनवीन पूरी हमने इजहार हल्की की, क्यों, आगे हमजा है, इस अलिफ को हम हमजा कहते हैं, क्यों, इसके ऊपर जबर है इसलिए। फिर देखिए औ मा मलकत, औ वावे लीन है ये, इसकी आवाज उर्दू के लफ्ज लखनऊ से मिलेगी, इसको औ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, औ, क्यों, वावे वाव जो है ये खुद जज्म की हालत में होता है हमेशा जब वावे लीन ये बनता है, और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर होती है, चाहे कोई भी हर्फ हो जबर होगी वो वावे लीन होगा। याद रखिए, उसको पढ़ने का तरीका ऐसा है कि जब आप उसको पढ़ेंगी आपकी आवाज में ये आवाज पैदा होना चाहिए जो आखिर पे होती है ना, लख नऊ नऊ, ये जो नऊ है ये जिस तरह आवाज में आता है इस तरह वावे लीन की आवाज, जैसे औ, अब ये देखिए इसको मैंने पढ़ा ना, औ मा मलकत, औ मा म, सब बारीक लेटर है, इनको किसी को भी आपने हैवी करके मोटा करके नहीं पढ़ना। औ मा मलकत कत ऐमानुकुम, आई, अब ये देखिए जिस तरह औ था इस तरह आई है, ये या, ये वाव और ये या, ये दोनों की पहचान ये है कि ये खुद सुकून की हालत में होते हैं और इनसे पहले वाले हर्फ पर चाहे कोई भी हर्फ हो जबर लगी होती है, ये इनकी शर्त है। वो वावेलीन था, ये याइलीन है। अच्छा, उसकी आवाज उर्दू के लफ्ज लखनऊ से मिल रही थी, इसकी आवाज आई उर्दू के लफ्ज कई और गई से मिलती है। इसको ई माना नहीं पढ़ेंगे, आई माना पढ़ेंगे, आई मानुकुम, आई मा 2 हरकत खींचेगा, आई मानुकुम। फिर देखिए जालिका, जा तो एक लंबा होगा अलिफ के बराबर, लेकिन ली का ये ज्यादा नहीं खींचेंगे। फिर देखिए अदना, अदना दाल पे कलकला क्योंकि दाल जज्म के साथ है, दाल कुतुबिन जद्दिन का हर्फ है। अदना ना, ना को क्यों खींचा, ऊपर खड़ी जबर भी ऊपर मद भी है। अल्लाह, अल्लाह ताउलू, ताउलू, ता ता को ज्यादा नहीं खींचना, ऊ और लू दोनों 2 हरकत खींचेंगे, आइन को हलक से पढ़ा जाएगा, ताउलू, ठीक है, अलिफ की तरह नहीं, आइन को ऐन की तरह पढ़ा जाएगा। यहाँ हमारी आयत नंबर 3 कंप्लीट हुई, आयत नंबर 4 पर आइए। व आतुन निसा, व आ के ऊपर खड़ी जबर है, आप देखिए आ तुन, अब तुन, यहाँ पे नून पे तशदीद है, इसी तरह से बड़ा गुन्ना होगा, फिर सीन के ऊपर मद है, खींचेंगे, फिर हमजा को ज्यादा नहीं खींचेंगे, फिर आगे आइए सदुकातिहिन्न, स्वाद मोटा हर्फ है, स्वाद को मोटा पढ़ना है, फिर कौफ के ऊपर खड़ी जबर है, उसको एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे, उसको मोटा भी पढ़ेंगे, और हिन्न इसके ऊपर गुन्ना करेंगे, हिन्न, लेकिन नून को लंबा खींचिए, अलिफ नहीं लगा देना, नुकसान इजाफी हर्फ नहीं करना, गुन्ना करना है, अलिफ नहीं लगाना साथ। सदुकातिहिन्न, न, नून अलिफ नून जबर ना, नून अलिफ नहीं है यहाँ पे। अब इसको अगर गलत पढ़ेंगे तो सदुकातिहिन्ना, मुंह खोला और बड़ा कर दिया तो अलिफ लग जाएगा, फिर वो इजाफी हर्फ हो जाएगा जो कि लाने चलिए, जो कि हराम दर्जे की गलती है। इसलिए यहीं पे हिन्न इधर ही गुन्ना करके नून जबर ना पे रोक देना है। फिर देखिए निहला, निह, हा जो है गले में चला जाता है, इसकी आवाज चलती है सांस के साथ। अब लह हमने क्यों किया, ता 2 जबर तन, ये गोल ता आ गई, हम जब गोल ता के ऊपर रुकते हैं तो ये हा की, ये इसका नाम क्या, ताए मरबूता तजवीद की जुबान में, लेकिन ये जो ता है इसको हम उर्दू में कहते हैं ना गोल ता, तो ये जब हम इस पे रुकते हैं आरजी सुकून करते हैं तो ये हा में बदल जाती है, ये फिर ता नहीं रहती, फिर ये हा बदल जाती है। नेह, नेह ला, देखें नेह, ये तो ये वाली हा हो गई ना गलेज वाली, और नेह ला आखिर में आपको हा, वो वाला हा सीने की तरफ चली जाती है आवाज, वो वाला हा वो उस पे बदल जाएगी। अब ये देखिए नून साकिन के बाद नून साकिन, फ़िबना, तो मोटा होगा, इख्फा होगा, यहाँ पे इख्फा हकीकी उन्ना कामिला होगा, सेकंड यहाँ पे अगला मोटा हर्फ है ना, तो आपकी इख्फा जो आवाज और गुन्ना जो है इसके अंदर भी पता लगेगा, थोड़ा मोटा होके निकलेगा। तो तो को मोटा पढ़ा जाएगा, बा पे कलकला होगा क्योंकि बा देखें कुतुबिन जतिन का हर्फ है और जज्म के साथ है। तिबना, तिबना, नून को, नून जबर ना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचिएगा वरना अलिफ लग जाएगा। लकुम, फिर देखिए
शई इन नून साकिन के बाद शीन है, यहाँ पे इख्फा हकीकी हुआ, गुन्ना कामिल है। शई इम, अब देखिए शई इम में आगे हमजा दो जेर इनकी तनवीन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है, इदगाम होगा यहाँ पे, इदगाम ताम बिल गुन्ना, यानी ऐसा इदगाम जो कि गुन्ने के साथ होता है, मुकम्मल गुन्ने के साथ। वही हमने आयत के शुरू में भी किया था ना, मिनन निसा के ऊपर भी हमने, लकुम मिनन निसा के ऊपर भी दोनों इदगाम ताम बिल गुन्ना, यानी गुन्ने के साथ, मुकम्मल गुन्ने के साथ, भरपूर गुन्ने के साथ जो इदगाम हुआ था, यानी शई इम मिनहु। ठीक है, ये देखिए शई एम, लंबा गुन्ना भी हो रहा है, अकमल गुन्ना भी हो रहा है, यानी जो बड़ा गुन्ना होता है ना, ये भरपूर गुन्ना होता है, इस वजह से इस इदगाम का नाम होता है इदगाम ताम बिल गुन्ना। देखिए आप नाम याद रखने के, नामों से घबराइए नहीं, लेकिन आपको तरीका कार आना चाहिए, सुन सुन के आपको नाम भी याद हो जाएंगे। मैं इसीलिए बार बार दोहराती रहती हूँ, ताकि सुन सुन के आपको नाम याद हो जाए। तो यहाँ पर आपने इतना भी ख्याल रखा ना कि मीम शद के साथ है, जब भी मीम शद के साथ होता है और नून, तो डबल हो जाता है ना, दो मीम आ गए ना, ये तशदीद बता रही है ना कि यहाँ पे दो मीम है। जब दो मीम होंगे तो जाहिर आवाज देर तक नाक में छुपेगी, जब देर तक नाक में छुपेगी तो गुन्ना तो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा, खुद ब खुद अकमल हो जाएगा, चाहे आप उसका नाम लें या ना लें, नाम लेना तो जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ के दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, फिर देखिए नफ्स, अब देखिए सीन दो जबर सन, नफ्सन, लेकिन आगे फा आ गया, यहाँ पे इख्फा हो रहा है, तो हम इसको सन नहीं पूरा करेंगे, हम इसको आधी आवाज नाक में ले जाएंगे, इख्फा हो जाएगा नफ्स, और फिर थोड़ा सा गुन्ना भी कर देंगे, कामिला सेकंड लेवल का, दूसरे दर्जे का, नफ्स ऐसे कर देंगे। फिर फकुलूहु, फकू काफ पेश कू, लू को दो हरकत खींचेंगे क्योंकि उसके साथ वाव मद्दा है, फकुलूहु, अब फौरन आगे हु को रोकना है, ऐसा ना हो कि फा से शुरू हुए तो फकुलूहु को भी खींच खींच मारा आगे, हा के साथ भी लगा दिया वाव मद्दा, नहीं करना ऐसा, ऐसा करने से वाव का इजाफा हो जाएगा ना, इजाफी हर्फ हो जाएगा जो कि लहने जली है, जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है, फकुलूहु, फकुलूहु। यहाँ पे मैंने आपको तिलावत में बार बार पढ़ के बताया, और मैं यही चीज आपको दिखाना चाहती थी कि फकुलूहु, लू तो खींचेगा, हु नहीं खींचेगा, फकुलू, फकुलूहु। ठीक है, फिर आगे देखिए, बहुत गौर से देखिए इस लफ्ज को, हनी, क्यों खींचा हा को, हा देखिए कौन सा हा है, इस हा की आवाज गले से नहीं होती, ये जो हा है ये सीने की तरफ, इसकी जो आहें भरते हैं, आह, अरे भाई क्या बात है, कहते हैं आह, ऐसे करते हैं ना, ये जो आह है ना, ये वाला ये हा है, इसकी आवाज सीने की तरफ जाती है, जब आप आह भरते हैं तो आपकी आवाज कोई गले में तो नहीं आती ना, सीने की तरफ जाती है, तो ये जो हा है ना, इसकी आवाज सीने की तरफ जाती है। एक तो ये हो गया, फिर देखिए नी, इसको क्यों खींचा, हनी, ऊपर मद है, वो देखिए ऊपर ब्लैक कलर की मद लगी हुई है, फिर देखिए हनी, मद की तरफ से खींचा, फिर जो अम है, हनी अम, ये भी खींचेगा, हनी अम, क्यों, हमजा दो जबर अन की तनवीन है, और उसके बाद मीम मुशद्दद है, ये जो बीच में अलिफ खड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है, हमजा दो जबर अन जो है वो मीम के साथ इदगाम होगा, कौन सा, इदगाम ताम बिल गुन्ना, और अकमल गुन्ना होगा यहाँ पे मीम मुशद्दद की वजह से, इस वजह से यहाँ पर आम जो है वो खींचेगा, इदगाम ताम हो रहा है, इदगाम हो रहा है, इदगाम ताम बिल गुन्ना हो रहा है, बड़े गुन्ने के साथ, भरपूर गुन्ने के साथ, हनी अम। ठीक है, मीम को इतना खींच के आपने यहाँ पे इदगाम भी किया, गुन्ना भी किया, फिर देखिए कि मरी, फिर ये री क्यों खींचा, इसके इसकी मद की वजह से, ऊपर देखिए मद लगी है ना, इस मद की वजह से मरी, अब जो मरी, हमजा हमजा दो जबर आन है, लेकिन हमने इसको आ कर दिया, इसलिए कि हम यहाँ रुके हैं, जब भी दो जबर की तनवीन होती है, चाहे लफ्ज कोई भी हो, हमजा हो या कोई भी हो, किसी भी लफ्ज पर जब दो जबर की तनवीन होती है और हम वहां रुकते हैं, तो वो एक अलिफ और एक जबर के साथ एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाता है। इसको हम यहाँ रुके हैं, हमारी आयत यहाँ पे क्लोज हुई है, आयत नंबर 4 का ये लास्ट वर्ड है, हम यहाँ रुके हैं, मरी ठीक है, अलिफ के बराबर पढ़ा जाएगा, क्यों, दो जबर की तनवीन पर जब रुकते हैं तो वो एक जबर और पढ़ी जाती है, और एक अलिफ के बराबर उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, इसकी खूब अच्छी तैयारी कीजिएगा, और
اپنی تلاوت کو اچھا سا بنائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔